Good afternoon, everyone. Welcome, summer interns. We are excited to introduce you to Skill Veda, an innovative platform dedicated to empowering young minds with essential skills for future. In this online workshop, we will focus on self-awareness, communication, stress management, and goal setting. Through interactive session, engaging activities, and expert insights, you will gain valuable knowledge and practical tips to enhance your self-confidence and manage stress effectively. Our today's trainer, Ms. Prachi Rastogi, is a seasoned trainer and consultant with more than 15 years of experience in education field. Welcome, Ms. Prachi. Thank you, Twinkle. Let's start. I think everybody can open their cameras if they are comfortable so that I can see because this is a personality development session. So in this, I need to see you. Hi, Kushi. Hey, ma'am. Hi, Navya. Hi, Sneha. Hi, ma'am. You can unmute yourself. Hi, Swati. Hello, ma'am. Hi, hello. Hi, Divya. Hello, ma'am. Good afternoon. You can unmute yourself. We need to talk. जब तक हम बातें नहीं करेंगे तब तक हम एक दूसरे को जानेंगे कैसे, right? And personality development is a part of communication skills. So we need to develop our communication skills with the sessions. Okay, today we are going to develop our communication skills in this session. Hi, Gia. I think still few are left. Hi, Vaishnavi. Hi, ma'am. Okay, so let's start. So today, what you are looking forward for this from the session? Raise your hand and you can just unmute yourself and answer. Yeah, Navya, you can answer. Ma'am, I think that in today's webinar, we'll learn what are the important elements for developing a good personality. I mean, how we can enhance the communication and everything. Yes, you are right. We are going to learn all these things. Today, we are going to learn how we need to work on our personality when we meet somebody, how we need to do the greeting part, how we need to talk with anybody, how there is a general, general etiquettes, and we are going to learn all these in this session. Okay, so let's first work out on, let me share my PPT. Are you able to see my screen? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. So today we are going to unlocking your potential, a personality development session. In this personality development session, I am going to unlock your potential. That because you all are having potential, so we are going to work on that. Okay. So let's move ahead. So let's discover your strength and weaknesses. Do you have your paper and pen? Just unmute yourself. So write down 3 weaknesses and 3 strengths of yours. I want to see. Quickly write down, or you can write down in chat box also. Write down your 3 weaknesses and 3 strengths. Then we are going to work on that. If you have written and you want to discuss, you can unmute yourself and then you can discuss.
think and write your strengths, because we are going to work on that today. And write down your weaknesses also, because today we are going to work on that also. Done? Done, Khushi? Yes, ma'am. Okay, now tell me. Ma'am, so my three weaknesses are that I'm a big procrastinator. I use perfection as a tool of self-doubt, and I overthink a lot. And my three strengths are that I'm very resilient. I'm a very resilient person. I will keep on trying and until I get it. And I'm very creative. I like to uh, do a lot of creative stuff. And then I'm a very empathic person. I feel a lot. I take in emotions of other people as well, and I try to understand them. Nice, nice. Yes, Navya, you have written? Yes, Navya, you just Yes, unmute yourself. ma'am. Yeah, sure, ma'am. So, ma'am, first talking about my strengths, my strength is taking accountability. So, whether it's any task which I have given, even if it goes wrong, I'll always be accountable for it. The second is the leadership qualities, and remaining in this internship also has taught me many leadership qualities. So, I will account it as my strength. And the third would be my oratory skills. So I've been a part of the oratory committee in my school since a very long time. So I have developed it in a very good manner. And when I talk about my weaknesses, the first is overthinking. So I have noticed that I tend to overthink a lot of my decisions. And the second one would be lack of time management. I tend to procrastinate a lot of my tasks. So that leads to a lot of burden at the end. And the third would be seeking validation. So I have noticed that even if I'm taking initiatives, I'm scared to take initiatives because then I'll think the judgment of people, and I would actually look more for validation. So the problem is that I do not take initiatives properly. So yeah. No, the problem is not for initiative. The problem is sometimes you seek approval, or sometimes you need a little bit guidance. That's it. The problem is this. अगर आप उस guidance को सही direction में use करोगे, then you'll be perfect. Because you are doing your best. You are giving your best in every sense, right? So be confident that you are giving your confidence. You are giving your 100% best. Sometimes is you are not here to satisfy everybody. See, समटाइम्स ऐसा होता है कि कभी हमने बहुत अच्छा किया है, बहुत सारी चीजें हमने अच्छी करी हैं, बट हमसे एक गलती हो गई ना, तो हम नहीं कर सकते, कभी कभी ऐसा लगता है नहीं, ये क्यों गलत हो गया। वी फील दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड, हमारे अंदर ये वाला इंडल्ज आ जाता है, एटीट्यूड इंडल्ज हो जाता है। तो हमें ये चीज नहीं देखनी है, हमें देखनी है हमने तीन चीजें तो बेस्ट करी है ना। आई हैव डन थ्री थिंग्स गुड। एक गलत हो गया, कोई बात नहीं, लेट्स सी द गाइडेंस, लेट्स सी समवन टू गाइड, talk with people so that you can have the solution. It's the okay. Arush, curious and open-minded. Okay. Emotionally insightful, creative and expressive. Easily distracted. Yes, Ayush, if you are easily distracted with the things, you need to concentrate. So you can use some yoga, or you can do some yoga, you can do some meditation activities so that it will be helpful for you. With the help of this only yoga and meditation, you can easily control your emotions also. Seeks external validation frequently. So you always seek validation that your work is good, or your work is in, you need some validation regarding that, right? So for this, you need to work on your confidence level, and you'll be happy for it. Vaishnavi, I'm talking to new people. वैष्णवी, समटाइम्स देयर विल बी लाइक आपके अंदर थोड़ा सा रहेगा हेजिटेशन, कभी कभी होता है, हम में सब में हेजिटेशन होता है जब हम नई जगह जाते हैं और नए लोगों से बात करते हैं।
बट हमें इस कॉर्नर को सिर्फ अपने तक रखना है, हमें इसको शो नहीं करना है। एंड विद द हेल्प ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशंस यू कैन इजीली कंट्रोल ऑन योर बॉडी गेस्चर। सो आप अपने माइंड की चीजें अपने फेस पे नहीं आने दोगे। कभी कभी क्या होता है जब हम बाहर जाते हैं, और जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। Guys, please switch on your cameras. Vaishnavi, Vidya, यस, Arushi, Vrinda, everyone, please. कभी कभी I हम जब don't बाहर have to जाते say हैं this again and again in every webinar. I have to say this thing. शुड आई कंटिन्यू? Yeah, please, Prachi. Yeah. वैष्णवी, क्या होता है जब हम कभी भी बाहर जाते हैं, हम हमारे बॉडी गेस्चर से हमारी नर्वसनेस दिखाई दे जाती है। ठीक है, तो हमें उसको कंट्रोल करना है, अपने गेस्चर्स को कंट्रोल करना है, अपने माइंड में अनलॉक करना है। ओके, यू आर वरीड अबाउट द थिंग्स, इट्स ओके, इट्स टोटली ओके, यू आर नॉट ओपन विद द थिंग्स। हम कभी बाहर जाते हैं, चीजों को नहीं हम हैंडल कर पाते, कुछ चीजें वर्स्ट भी हो जाती है, कुछ चीजें अच्छी भी हो जाती है। बट हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं ना, वो ही एक ऐसी चीज है जिससे सबको पता चल जाता है दैट यू आर नर्वस। एंड हमारे फेशियल एक्सप्रेशन ही हमें बताते हैं कि दैट यू, सबको बताते हैं दैट यू आर हैप्पी, नाउ यू आर एक्साइटेड टू टेक द थिंग्स, राइट? हमें उसी चीज को कंट्रोल करना है। सो फॉर दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक श्योर योर गोल्स, think about your goals. What are your long term goals and what are your short term goals? First, write down, chalk down your long term goals. I want your answers in chat box. Just chalk down your long term goals. I want to see. Done. Brinda Gupta, can you share your long term goals? Tanya, I'm not able to hear, understand what you are saying. अरे सैंडल लेके आई थी मेरे लिए, बोले थे तो। Very nice, Ruchi. Have a good long term goal. हाँ, Uh, अरे उसके लाने को बोले थे ना, वो क्लीनर का कुछ मेरे साथ दुकान ही हुई है। ये फैन ऑफ कर दो ना। Chavi, unmute yourself. Ma'am, the long-term goals which I have right now is my weakness, first and for all, is that I am very sensitive towards others. Like, if someone talks to me rudely, then it deeply affects me, even if it's a stranger. So, one thing which I would like to build is resilience towards those things, so that I can not be so much affected by others' response towards me. And also, I have been procrastinating lately a lot, as we are all on vacations and holidays. So at home there is no rules and regulations. We are our own masters. We can do anything as we like. So the thing is, we tend to keep the work for tomorrow, but it never gets done. That's it. Chavi, you are right. Right now, you don't have schedule. In fact, I am also not having schedule because I am little bit late with the sessions. I am also, earlier I was working full time. Now I have taken a break. So my schedule is also like going off and on. So हो जाता है कभी कभी हमारे schedule के साथ भी ऐसी चीजें हो जाती हैं जहाँ पे हम वर्कआउट नहीं कर पाते, बट इट्स ओके। थोड़े दिनों की बात होती है, फिर चीजें मैनेज हो जाती हैं, बिकॉज नाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर योर कॉलेजेस, यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर योर यूनिवर्सिटी, यू विल नॉट गेट टाइम।
राइट? अभी आपके पास टाइम है, एंड नाउ यू आर यूटिलाइजिंग योर टाइम विद टेकिंग दीज काइंड ऑफ सेशंस, राइट? तो अभी आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो, बट आपका स्केड्यूल नहीं बनेगा जब तक आप अपने स्केड्यूल के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं हो. यू हैव टू टेक द थिंग्स ऑन अ प्रॉपर टाइम. अब आप प्रॉपर टाइम के अकॉर्डिंगली अगर आप थिंग्स करोगे, फर्स्ट चॉक डाउन योर गोल. Your short term goal will be, and your what is the long term goal will be. अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल होता है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं देख रही हूँ काफी बच्चों ने लिखा है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए यू हैव टू कॉन्टिन्यूसली वर्क ऑन योर स्टडीज, वर्क ऑन योर स्किल्स, राइट? उसके बिना तो आप नहीं हो सकते हो financially independent. And financially independent होने के लिए you should be graduate, right? First of all, you have to finish your college work. But with that, while doing your first year or second year, आपका जब तक complete होगा, आप काफी चीजें अपने लिए करने लग जाओगे. You can do freelancing work, whatever you are studying, you can incorporate that work, you can incorporate that skill or your studies material. ठीक है, आप उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, और उस चीजों के लिए भी हमारे पास एक डेटाबेस होता है, हम उस पर वर्क करते हैं. डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं साइड बाय साइड फ्रीलांसिंग के भी. यू कैन वर्क ऑन दैट, एंड थोड़ा सा आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट कर देते हो, वहीं से वो ही एक पैटर्न होता है. बट बिफोर दैट, योर शॉर्ट टर्म गोल यू हैव टू सी क्लियरली. आपने लॉन्ग टर्म गोल अपना डिसाइड किया है दैट आई नीड टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आई डोंट वांट टू टेक हेल्प फ्रॉम माय पेरेंट्स, आई वांट टू वॉलंटरी हेल्प टू माय पेरेंट्स, राइट? ये आपका हो गया लॉन्ग टर्म गोल. बट इसको पूरा करने के लिए आपको क्या करना है? यू हैव टू वर्क ऑन योर शॉर्ट टर्म गोल्स. And what is your short term goal right now? Navya, what is your short term goal? Ma'am, to excel with good marks right now, like focusing on my studies. You are focusing on your studies. अभी exams आपके हो चुके हैं, I think 12th के. You have cleared your 12th, right? No, Or ma'am, you we are are in current? 12th right now. We will give You are. 12th in next Okay. year. Okay, next year. So your Mm. your long term should be right now. Your long term goal should be that you have to clear your board exams with good marks, right? This is your long term goal, right? Right now, your financially independent is not a long term goal. वो और ज्यादा 5 ईयर्स और 10 ईयर्स की बात चला जाएगा. अभी फिलहाल के लिए जो आपका मेन टारगेट है, यू हैव टू स्टडी वेल एंड यू हैव टू गेट योर गुड मार्क्स, गुड स्कोर इन योर 12th, राइट? एंड नाउ लेट्स कम ऑन द शॉर्ट टर्म गोल्स. नाउ माय शॉर्ट टर्म गोल इज, अभी मुझे क्या क्या सब्जेक्ट्स में अपने लिए जो मेरी वीकनेसेस हैं मुझे वो क्लियर करनी है. Because right now you are having 10 or 20 days in your hand, right? After that, your school will be started. After that, you will be having your tuitions also. Your regular classes will go on. So you are not able to work on your health as well as work on your personality. Now, this is the time. अभी आपके पास 20 days हैं. You can work on your health. You can work on your looks. You can work on your studies also side by side. स्टडीज को हमें हैम्पर नहीं करना है इन सब चीजों के लिए, बट हमें इन सब चीजों पे भी ध्यान देना है. अपनी हेल्थ, अपना माइंड स्टेट, अपना स्ट्रेस लेवल, हमें सब चीजें काम डाउन करनी है. बिकॉज अगर स्ट्रेस काम डाउन हो गया एक बार, अगर हम कंट्रोल कर सके अपने स्ट्रेस को, नाउ एट दैट टाइम योर एनर्जी लेवल विल बी लाइक हेयर. वो बूम करेगा आपका एनर्जी लेवल, एंड यू कैन परफॉर्म वेल इन योर 12th बोर्ड. तो एनर्जी लेवल हाई करने के लिए हमें क्या करना है? यस वैष्णवी, यू वांट टू आंसर, क्या करना है हमें अपना एनर्जी लेवल हाई करने के लिए? Please unmute yourself. Ma'am, I believe to keep our energy level high right now, we just need to make sure that we do not get burdened or pressurized by the things that we are doing. Okay. Yaduchi, you And want to say something? also, we also have to make sure that we do not compare ourselves from someone else and try to excel in what we were yesterday and now what we are today and tomorrow. Yes, Ruchi. Nice, Vaishnavi, My very good.
Ma'am, for me, firstly, I would like to focus on my diet, as having a healthy body is equally enough to have a healthy mindset. And Yes, secondly, of course, I need to focus on myself and not look at others what they are doing. yes, yes, Ruchi, you are totally right. First of all, you have to manage your sleep cycle. ठीक है, अभी टाइम है तो अभी सब कुछ मूवी देख लो, अभी बस रात को सब कुछ कर लो, नहीं. यू हैव टू वर्क ऑन योर स्लीप साइकिल फर्स्ट. टाइम से सोना है, टाइम से उठना है. देन उसके बाद ईटिंग हैबिट्स. यू यू हैव टू ईट प्रॉपरली. टेक गुड डाइट, दाल चावल रोटी सब्जी, वट एवर यू फील लाइक, जो भी अच्छा लगता है. गर्मी है इस टाइम तो यू कैन टेक बटर मिल्क ऑल्सो, यू कैन टेक सम स्वीट लस्सी ऑल्सो. टेक गुड. ओके, बाहर जाओ, ऐसा नहीं कि बाहर कुछ खा लिया. ऑयली थिंग्स अवॉइड करो. अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो, बिकॉज दिस इज द टाइम. इफ यू विल बी हेल्दी, यू कैन क्लियर योर गोल्स. हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, राइट. तो माइंड को हेल्दी रखने के लिए हेल्दी खाना पड़ेगा, टाइम से सोना पड़ेगा, टाइम से सब चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी. ट्यूशंस के टाइमिंग अगर मॉर्निंग में है, गो विद दैट. आफ्टरनून का टाइमिंग बचता है, गो फॉर अ गुड वॉक. पार्क में जाओ, एक गुड वॉक लेकर के आओ, अच्छा सा 10 मिनट्स का, 20 मिनट्स का. पार्क में नहीं जा सकते हो, घर के अंदर ही वॉक करो. वॉक करने के टाइम पे सी योर बॉडी पोस्चर शुड बी स्ट्रेट प्रॉपर. आपका बॉडी पोस्चर जितना अलाइंड रहेगा, you'll be calm. अपने माइंड को काम रखेंगे हम, then you can work on your extra skills also. If you are good in computers, work on it. If you are good in Canva, work on it. If you want to learn AI, work on it. थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, क्योंकि स्टडीज का भी बर्डन है. ठीक है. टेक वन वन सब्जेक्ट, टाइम मैनेज करो, अपने सब्जेक्ट्स को प्लान करो. ठीक है. किसका सिलेबस पहले करना है, किसका सिलेबस इजी है, अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हो उसको. एंड देन आपके गोल्स भी, शॉर्ट टर्म गोल्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे. देन यू कैन अचीव योर लॉन्ग टर्म गोल्स. अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करना है आपको, अपनी वीकनेस पे वर्क नहीं करना. सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करो, उसके बाद देखो आपकी वीकनेस ओवरकम होती जाएंगी उस चीज से. अगर आप स्ट्रेंथ में अपने सॉलिड हो जाओगे, आपकी वीकनेस ओवरशैडो हो जाएगी आपकी स्ट्रेंथ से. सबके पास वीकनेस होती है, मेरे पास भी है कुछ वीकनेस. मेरी वीकनेस है कि मैं क्राउड को देख करके फेस नहीं कर पाती. आई कांट मूव टू दिल्ली. मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है, और ये आज से नहीं है, लास्ट 20 ईयर्स से है. आई एम नॉट एबल टू कोप अप इन दिल्ली एनवायरमेंट. ये मेरी वीकनेस है. बट इस चीज के लिए मैं दिल्ली जाना छोड़ सकती हूँ, बट बाकी सिटीज तो नहीं छोड़ सकती. आई एम मूविंग देयर. सो बाकी अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करना है. अपनी वीकनेस तो ओवरकम ऑलरेडी हो जाएगा. अपनी 3 स्ट्रेंथ जो भी आपने बताई हैं, उन पे वर्क करो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे. अपना शॉर्ट एनालिसिस आपको करना ही करना है. एवरी स्टेप स्टार्ट्स विद योर शॉर्ट एनालिसिस. आप जब भी अपनी एक, फॉर एग्जाम्पल आपने अपना एक सब्जेक्ट उठाया, इफ यू आर कॉमर्स बैकग्राउंड, इफ यू आर साइंस बैकग्राउंड, आपने बिजनेस स्टडीज उठाया. आप सबसे पहले यही देखोगे ना उसमें, स्ट्रेंथ में, कि आपको कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, इस सब्जेक्ट में मुझे कितने चैप्टर्स आते हैं. वो आपका स्ट्रेंथ हो गया. ठीक है. आप उसको और अच्छे से करो. जो आपके चैप्टर्स रह गए हैं, उनको थोड़ा कम टाइम दे करके कंप्लीट कर लो. वीकनेस पे भी वर्क हो जाएगा. बट स्ट्रेंथ पे, अगर आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन उस वाले में से आ रहा है, स्ट्रेंथ वाले टॉपिक में से आ रहा है, आप उसमें कंप्लीट स्कोर कर पाओगे ना. 5 मार्क्स आपके बकेट में आ गए. लाइक दिस ओनली यू हैव टू वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ. अपनी स्ट्रेंथ को सॉलिड करो, अपने स्ट्रेंथ पे वर्क करो. देन यू हैव टू वर्क ऑन योर गोल्स ऑल्सो साइड बाई साइड. लॉन्ग टर्म गोल्स है. लॉन्ग टर्म गोल्स हम धीरे धीरे अचीव करते हैं जब हम शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करना चाहते हैं. अगर हमको फर्स्ट स्टेयर पे पहुंचना है, ऊपर वाली स्टेयर पे पहुंचना है, 10th स्टेयर पे, आप यहाँ से चढ़ना स्टार्ट करोगे ना फर्स्ट स्टेयर से, तो ये आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं. 1 से लेकर के 9 तक आपके ये सारे शॉर्ट टर्म गोल्स हैं. आपको पहले धीरे 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 अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करना है, और उसके बाद ऑटोमेटिकली यू कैन अचीव योर लॉन्ग टर्म गोल. फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, ये आपका 4 ईयर्स ओल्ड, 4 साल बाद का गोल है. ये अभी आपका लॉन्ग टर्म में भी नहीं आएगा. ये लॉन्ग लॉन्ग टर्म हो गया, डबल लॉन्ग टर्म में हो जाएगा. बट अभी लॉन्ग टर्म गोल क्या है आपका? यू हैव टू क्लियर योर गोल्स, एंड देन योर शॉर्ट टर्म गोल विल बी
You have to cover your subject matters. You have to take care of your health. You have to take care of your mind state. You have to work on your stress level. These are the short term goals. You have to be happy with your family. नाउ गोल्स हो गए अब हमारे सॉट एनालिसिस भी हो चुका है. हमने दो चीजों पे काम कर लिया. अब दो चीजों के बाद हमें क्या काम करना है, और उसके बाद हमें देखना है अपना then you have to work on just wait. ना अब आपको वर्क करना है अपने इम्प्रेशन, अपनी ग्रूमिंग स्टाइल पे. इफ यू आर ड्रेस्ड वेल, देखो टू टाइप के ओकेजन्स होते हैं. एक होते हैं हमारे फॉर्मल ओकेजन्स, एक होते हैं हमारे इनफॉर्मल ओकेजन्स. फॉर्मल ओकेजन्स रिलेटेड होते हैं आपके लाइक आपका कॉलेज का कोई स्कूल का कोई इवेंट है, आपका इंटरव्यू है, आपका यूनिवर्सिटी में आप इंटरव्यू देने जाओगे 12th के बाद, सो दैट विल बी अ फॉर्मल ओकेजन. ओके. अगर आप कहीं अपने फॉर एग्जाम्पल 12th के लिए अपने फेयरवेल के लिए रेडी होगे, दैट विल बी योर फॉर्मल ओकेजन. वो आपको रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है. अगर आप इनफॉर्मल रेडी होकर के अपने फेयरवेल पार्टी पे जाओगे, इट विल लुक गुड. नहीं No, अच्छा लगेगा. ma'am. हेवी सा सूट डाल के चले जाओगे, मम्मा बोलेंगी, मम्मा ने बोला कि हेवी सूट पहन के जाओ. फॉर्मल में लास्ट टाइम यही होता था. हमारे टाइम में साड़ी एंड सूट्स आर कंपलसरी, बट राइट नाउ ड्रेसेस आर देयर. गुड फॉर्मल ड्रेसेस आर देयर. आप वो पहन के जा सकते हो, बिकॉज योर फर्स्ट impression is your last impression. You should be take care about your personality, how you looks like, how you sit, how you talk, how your hand gestures, how your body gestures work. You have to work on all these stuff. अभी आपको क्या करना है, अपने फॉर्मल और इनफॉर्मल क्लोथ्स को अरेंज करना है. अभी टाइम है आपके पास. अपने फॉर्मल क्लोथ्स को अलग रखो और इनफॉर्मल क्लोथ्स को अलग रखो. अकॉर्डिंग टू द ओकेजन चूज, अकॉर्डिंग टू योर कलर. आप चूज कर सकते हो आपकी स्किन टोन पे कौन सा कलर अच्छा जाएगा. कॉम्बिनेशंस बना सकते हो, कैप्सूल वार्डरोब बना सकते हो आप. सबसे बड़ी बात अपना यही टाइम है, यू कैन क्रिएट योर कैप्सूल वार्डरोब which helps in your interview level also, at your interview level for universities, for selecting colleges. वहां पे भी आपका वर्क कर जाएगा वो कैप्सूल वार्डरोब. और उसके साथ साथ आपका कहीं फॉर्मल इवेंट होता है तो आप उसके लिए भी अपना वर्कआउट कर लोगे. बिकॉज आप अगर कहीं फॉर्मल इवेंट में शॉर्ट्स और टी शर्ट डाल के जाओगे, इट विल लुक गुड. No, ma'am. नहीं अच्छा लगेगा ना. और वहां पे ही आप एक अच्छा सा फ्रिल वाला फ्रिल वाला शर्ट वाला टॉप पहन के जाओगे विद फॉर्मल पैंट्स, ब्लैक बेज, उसके साथ कोई भी टीम अप करके डार्क कलर्स की पैंट टीम अप करके, लाइट कलर का रफल टॉप टीम अप करके या साइड टॉप टीम अप करके जाओगे तो इट विल लुक गुड. वो ज्यादा अच्छा Yes, इंप्रेशन ma'am. देगा या शॉर्ट्स या टी शर्ट इंप्रेशन देगा. Vaishnavi, you want to ask something? Ma'am, what is a capsule wardrobe? कैप्सूल वार्डरोब होता है जहां पे हम सिर्फ 3 क्लोथ्स के साथ मिक्स एंड मैच करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन white t-shirt, denim shirt and black pants. तो मैं उसको ब्लैक एंड व्हाइट का वो भी बना के पहन सकती हूँ. व्हाइट टॉप, व्हाइट टी शर्ट एंड ब्लैक पैंट्स अपना. ठीक है. मैं उसको सादा उस शर्ट के साथ भी टीम अप कर सकती हूँ. तो मेरे दो ड्रेसेस हो गए. राइट. अगर मुझे व्हाइट टी शर्ट नहीं पहनना, मैं शर्ट के साथ उसको ब्लैक पैंट्स को टीम अप कर सकती हूँ. मेरा थर्ड आउटफिट हो गया. सो मैंने 3 कपड़ों में से 3 आउटफिट्स बना लिए अपने. राइट. दिस कॉल्ड द कैप्सूल बॉन्ड. कैप्सूल वार्डरोब से आप क्रिएट कर सकते हो 6 आप पीसेस ऐसे लो, ब्लैक, व्हाइट एंड ब्लू.
आप इन्हीं के साथ वर्क कर सकते हो एंड इट विल गो विद एवरी स्किन टोन। ब्लैक सारी स्किन टोन के साथ जाता है, व्हाइट टी शर्ट एवरी स्किन टोन के साथ जाती है, ब्लैक पैंट्स आप एवरी स्किन टोन के साथ जाता है। एंड इन ब्लैक पैंट्स यू विल लुक टॉलर, स्लिमर लगते हैं हम। ब्लैक जब भी आउटफिट पहनते हैं हम स्लिमर लगते हैं, हम टॉलर लगते हैं। सिर्फ यही एक रीजन है हम कैप्सूल वार्डरोब की तरफ बच्चों को डाइवर्ट, बिकॉज कैप्सूल वार्डरोब में क्या होता है, आपके पास लिमिटेड कपड़े होते हैं और आप उसमें बहुत सारे लुक्स को क्रिएट कर सकते हैं। सेम विद द बॉयज, हम बॉयज के लिए भी कैप्सूल वार्डरोब ही रिकमेंड करते हैं। Yeah, Navya. यस नव्या, यू वांट टू आस्क? Ma'am, my question was that how can we access our own color coordination? I mean, we have seen हाँ, it on the internet, it's happening, but how can we do it at a home? हाउ कैन वी यूज इट? स्किन टोन के साथ आपको कपड़ा लगा करके देखना होता है, ठीक है। मैंने फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट हैविंग द क्लोथ, अभी मेरे पास नहीं है एज सच कुछ भी। आप पहले अपने स्किन टोन के साथ कुछ भी डार्क कलर लगा करके देखो, आपको पता चलेगा। अगर आपकी स्किन टोन कलर एक डाउन हो रहा है देन इट विल नॉट गो विद योर स्किन टोन। अगर आपका उसी कलर में स्किन ब्राइट हो रहा है, आपको यहाँ पे लगा के देखना है, ठीक है। उसको मिरर के सामने आप लगा के देखो तो आपको पता चलेगा, आपके स्किन टोन पे ही डिफरेंस पता चल जाएगा। अगर आपका स्किन टोन ब्राइट दिखाई दे रहा है उस कलर को लगा करके, तो दैट विल बी योर कलर। अगर थोड़ा सा वार्म हो रहा है तो आप उस शेड को छोड़ दो। कभी कभी ब्राइट कलर्स के साथ, फॉर एग्जाम्पल येलो, आपने देखा होगा येलो कलर सबके साथ नहीं चलता, राइट? लेकिन मस्टर्ड वर्क करता है, बिकॉज येलो का डार्कर शेड होता है मस्टर्ड। तो मस्टर्ड में कभी हमारी स्किन टोन और एक नंबर अप हो जाता है, बट अगर हम येलो लेते हैं तो हमारा नम, एक एक नंबर स्किन टोन हमारा डाउन हो जाता है। तो ये कुछ कलर्स के साथ होता है। मैं आपको, अगर आपको डिटेल सेशन चाहिए होगा इसके साथ, तो विल वर्क ऑन द कैप्सूल वाटर, ठीक है। बिकॉज उसके अंदर हम कलर चार्ट के ऊपर फिर बात करेंगे। व्हाट आर द व्हाट काइंड ऑफ ज्वेलरीज यू कैन टेक, you what kind of accessories you can take for formal events, what kind of accessories you can take with you can wear with casual wear. So it totally depends। आपका एसेसरीज पे भी आपका वर्क होना चाहिए। आप जब अपना कैप्सूल वार्डरोब क्रिएट करोगे तभी आप अपना एसेसरीज वार्डरोब भी क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वॉच, आप एक नाइस वॉच देख सकते हो जो ऐसा हो जो आपके सारे ही क्लोथ्स पे चले, फॉर्मल्स वाले पे, आपके जीन्स पे भी वर्क करे, आपका सूट पे भी वर्क करे, आपका साड़ी पे भी वर्क करे। सो टेक वन वॉच बट इट शुड बी गुड। आप ऐसे इन्वेस्ट करो, ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करो जो आपके वार्डरोब को अपलिफ्ट करें, ठीक है। बहुत सारे नेक पीसेस आते हैं, स्टोन के भी आते हैं, पर्ल्स के भी आते हैं, बट इट डजेंट लुक कि सबके साथ वो चीज चल जाए। पर्ल्स विल वर्क विद एवरी आउटफिट। इंडियन के साथ भी जाता है पर्ल, एंड उसके साथ भी जाता है पर्ल, आउट वेस्टर्न के साथ भी जाता है पर्ल। अगर आप कॉर्पोरेट लेवल का वार्डरोब क्रिएट करना चाहते हो, अपना फॉर्मल वार्डरोब क्रिएट करना चाहते हो, तो यू कैन टेक अ पर्ल नेकलेस, छोटा सा स्लीक सा पर्ल नेकलेस विद अ गुड क्वालिटी। आप वो क्रिएट कर सकते हो। एक अच्छा ब्रेसलेट ले सकते हो आप साइड में हैंड में डालने के लिए, बट इट शुड बी स्लीक। ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए तो वो फॉर्मल के साथ नहीं जाएगा, ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी लाइक अपने हैंड के अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ेगा, उसमें आपको मेजर करना पड़ता है। सेम विद द कलर्स यू कैन गो, सेम विद द वॉच। आप एक्सेसराइज कर सकते हो अपने आप को अपने वार्डरोब अकॉर्डिंग। देन देन वी कम अपॉन हाइजीन एंड ग्रूमिंग। ड्रेस तो आपने, अब आप ड्रेसअप तो हो गए हो अपने ओकेजन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। देन यू शुड बी, अब आपको हाइजीन और ग्रूमिंग पे भी अपने ध्यान देना है। हाइजीन और ग्रूमिंग पे आप कैसे ध्यान दोगे? अपने पर्सनल हाइजीन पे यू शुड टेक केयर। अपने नेल्स ट्रिम रहने चाहिए, आपके आपके हेयर हमेशा कॉम्ब रहने चाहिए। गर्मी हो रही है, यू कैन टाई, यू कैन, खुले नहीं है, कभी कभी किसी कुछ पर्सन को नहीं अच्छे लगते हैं, तो आप अवॉइड करो उस चीज को। अगर आप बाहर धूप में जा रहे हो, हैव अ पोनी टेल। जरूरी नहीं है कि आपको खुले बाल रखने हैं, ठीक है। कहीं पहुंच करके जस्ट कॉम अप, एक बार दोबारा से ब्रश कर लिया हेयर्स को, इट विल बी लुक गुड। ग्रीसी हेयर आपके नहीं होने चाहिए। यू शुड वॉश योर हेयर ऑन टाइम। जब तक आप टाइम से हेयर वॉश करोगे आपके हेयर्स अच्छे रहेंगे।
ठीक है, आपके नेल्स बिल्कुल ट्रिम रहने चाहिए, बिकॉज अगर नेल्स किसी के बड़े होते हैं तो अच्छा लगता है क्या? नहीं अच्छा लगता। ठीक है, हाइजीन लेवल है वो आपका, आपको अपनी पर्सनल हाइजीन पे वर्क करना है। ऑलवेज कीप अ हैंकरचीफ इन योर पॉकेट। छोटा साइड स्लीक बैग लिया आपने, गर्ल्स, बॉयज कैन पुट इट इन योर पॉकेट, बॉयज अपने पैंट के पॉकेट में भी रख सकते हैं एंड गर्ल्स अपने स्लीक बैग में रख सकते हैं। हैंकी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको हैंकी हमेशा रखना है एंड ऑलवेज जस्ट प्रेस अ फ्यू परफ्यूम ड्रॉप ऑन दैट। थोड़ा सा स्प्रे किया परफ्यूम का अपने हैंकरचीफ पे, उसके बाद आप उसको रखो, इट विल लुक गुड। आप जब कभी भी अपना हैंकी यूज करोगे इट विल नॉट गिव यू बैड स्मेल, वो आपके बैड ऑर्डर को ऑलरेडी कंट्रोल कर लेगा। ये बेसिक टिप्स होती है। व्हेन यू यूज, आप डीओ यूज करोगे, अच्छा डीओ यूज करो, गर्मी बहुत है, स्वेटिंग होती है, ठीक है, तो आपको अच्छा डीओ, आप टू स्प्रे करो बस, एक यहाँ स्प्रे करना है आपको नेक पे एंड यूज वैसलीन, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा आपका इफेक्ट डीओ का। थोड़ा सा वैसलीन एक बार यहाँ लगाया, एक एक ड्रॉप यहाँ लगाया, बस दैट्स इट, और उसके ऊपर आपने दोनों स्प्रे मार लिए, टू स्प्रे। एंड हैंड्स पे, अपना रिस्ट पे आपको जरूर लगाना है यहाँ पे। जब भी आप किसी से हैंडशेक करोगे तो वो अच्छा स्मेल देगा, या आप किसी के पास खड़े होगे तो वो स्मेल देगा। कपड़ों पे नहीं लगाना है हमें डीओ, ठीक है, डीओ का काम कपड़ों के लिए नहीं होता, स्वेटिंग रोकने के लिए होता है। बट ज्यादा भी यूज करोगे तो बहुत स्मेल आता है उससे, वो फ्रेग्रेंस बहुत हाई हो जाता है, आपकी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा लेवल वो कम कर देता है। सो यूज इन अ क्वांटिटी, उसको ज्यादा हायर क्वांटिटी में नहीं करना, थोड़ा क्वांटिटी में करना है, बट इफेक्टिव वे में करना है, हमें इफेक्टिव वे में अपने आप को प्रेजेंट करना है। देन ग्रूमिंग के साथ साथ हमें हाउ, आपको सबसे बड़ी बात है, फर्स्ट इंप्रेशन होता है, हमें ऊपर से लेके नीचे तक कोई भी पर्सन, हम कहीं भी जाते हैं देखते हैं, सब सब देखते हैं कि ऊपर से लेके नीचे तक देखते हैं बिल्कुल, कि आपके हेयर्स कैसे हैं, मेसी तो नहीं है। अगर हेयर मेसी होंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग समवेयर, मैं स्कूटर से जा रही हूँ, अब स्कूटर से जा रही हूँ, मैंने मुंह पे कपड़ा भी बांधा है, ठीक है, बॉयज ने अपना हैंकी भी बांधा है, ठीक है, मैं जा रही हूँ स्कूटर से, अब मुझे ऐसी जगह पहुंचना है जहां पे मेरा फर्स्ट इंप्रेशन पड़ना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉल फॉर मी। सो आप जाओ, मुंह से कपड़ा उतारो अपना, पहुंच करके अपनी डेस्टिनेशन पे जस्ट कॉम्ब योर हेयर्स, टेक अ वेट टिश्यू, अच्छा सा टिश्यू रखो अपने बैग में या हैंकी रखो, जस्ट टैप ऑन इट, अच्छे से टैप करो, जस्ट गिव टू स्प्रेस, दैट्स इट, एंड यू आर रेडी टू सेट। देन वर्क ऑन योर ब्रेथ ऑल्सो। बैड ब्रेथ आती है जब आपके पास कोई खड़ा हो और एंड आपने अनियन खाया हो या फिर कुछ ऐसा खाया हो जो बैड ओडर दे, तो आप क्या करोगे? ऑलवेज कीप अ कार्डमम इन योर बैग। सबसे छोटा सा थिंग है कार्डमम, एक इलायची अपने बैग में रखो, बस उसको मुंह में डालो एंड योर बैड ब्रेथ इज गॉन। छोटी छोटी सी चीजें हैं, बस छोटी छोटी सी चीजों पे ही हमें वर्क करना है एंड विल बी गुड। नीट अटायर होना चाहिए, आप कभी भी कहीं जाते हो ऑलवेज आयरन योर क्लोथ्स, प्रॉपरली क्लोथ्स को आयरन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे इधर क्रीस आ रही है, यहाँ पे क्रीस आ रही है, वो अच्छा नहीं लगेगा। वर्क ऑन योर क्लोथिंग, वट एवर यू आर गोइंग टू वेयर, जस्ट वर्क ऑन इट। पैंट्स प्रॉपरली आपके प्रेस होने चाहिए, इफ यू आर वेयरिंग शॉर्ट्स जस्ट प्रेस देम, शॉर्ट्स पे भी क्रीसेस आ जाती है व्हेन वी यूज टू सिट। देन यू हैव टू वर्क ऑन हाउ टू सिट। ऐसे नहीं जब आप कभी भी जा रहे हो और आप बैठ जाओ ऐसे, शॉर्ट्स में अगर आप बैठे होते हो तो क्रीसेस अपने आप बन जाती हैं, राइट, पैंट्स में भी अपने आप बन जाती है, बट उसको अवॉइड करने के लिए यू हैव टू सिट प्रॉपरली। अगर आप ठीक से बैठते हो, पैर को ठीक से करके आप स्लाइटली टर्न करके बैठते हो अपने पैरों को दोनों को, तो उसमें आपका मूवमेंट बिल्कुल सही रहता है और आपके क्लोथ्स की क्रीज भी प्रॉपर बनी रहती है। यू हैव टू वर्क ऑन ऑल दीज स्किल्स, छोटी छोटी सी चीजें हैं, हमें सिर्फ ध्यान रखना है कुछ चीजों का, एंड देन आवर पर्सनैलिटी विल बी गुड। देन बेसिक कलर कोऑर्डिनेशन, सटल एसेसरीज आर देयर, मैंने आपको अभी बताया। आफ्टर वर्किंग ऑन ऑल दीज थिंग्स, लेट्स वर्क ऑन सोशल एटिकेट्स। समटाइम सोशल एटिकेट्स बहुत मैटर करते हैं, समटाइम्स नहीं, काफी हर बार ही मैटर करते हैं। सोशल एटिकेट्स एक ऐसी चीज है, कहीं भी आप जा रहे हो, आपका बिहेवियर, आपका जजमेंट उसी चीज से होता है।
आप जब भी कभी सब जाते हो, जस्ट ग्रीट, वट एवर द ग्रीटिंग ऑफ द डे इज। नमस्ते भी आप कर सकते हो, ठीक है, हाय भी कर सकते हो, हेलो भी कर सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू योर गेस्चर्स, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। अगर आप किसी आंटी अंकल के यहाँ जा रहे हो, यू कैन डू हेलो ऑल्सो, you can do, if they are too old, you can do namaste, according to the age of the person। आपको वो चेंज करना है अपना ग्रीटिंग ऑफ द डे। ओके, अगर मैंने, फॉर एग्जाम्पल, मैं आंटी, आई एम गोइंग टू आंटीज हाउस एंड शी इज 60 year old, I don't, sometimes she will not accept my hello, but she will accept my namaste, right? बट कहीं कहीं वो आपको मैटर करेगा आपके नोन और अननोन के पर्सन से। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट, यू कैन डू हेलो, जेंटल हेलो, फर्म हेलो, दैट्स इट, हेलो, हाय। योर वॉइस टोन विल वर्क ऑन इट, यू हैव टू वर्क ऑन योर वॉइस टोन। जनरल एटिकेट्स में आपका वॉइस टोन पे भी आपका कंट्रोल होना चाहिए। अब मैं कहीं जाऊं और मैं बोलूं हेलो, अच्छा लगेगा? और अगर मैं वही हेलो बहुत सॉफ्ट टोन में बोलूं, हेलो, इट विल लुक गुड, और इट विल लुक, और फर्स्ट वन लुक गुड, कौन सा अच्छा लगेगा? Ma'am, the Ma'am, the second one. second one. सेकेंड वन, राइट? Ma'am, the second हम, one. यस, यू हैव टू वर्क ऑन योर वॉइस टोन ऑल्सो। अगर मैं कहीं जाऊं और मैं बोलूं किसी आंटी को, कोई ओल्ड आंटी मुझे मिली है, और मैं उनको बोलूं नमस्ते आंटी, इट विल लुक गुड, और आंटी नमस्ते, कैसा, कौन सा वाला बेटर है? The second one. Second one, सेकेंड, ma'am. The राइट? second one. ऑलवेज वियर स्माइल ऑन योर फेस। व्हेन यू वियर स्माइल, आधी चीजें वहीं गायब हो जाती है। पर्सन आपकी स्माइल देख करके ही आपके एटीट्यूड को जज कर लेता है, क्या दैट्स माय गर्ल और दैट्स माय बॉय। ऑलवेज वियर स्माइल। आपकी नर्वसनेस, आई नो, फर्स्ट टाइम आप कहीं जा रहे हो, आप नर्वस होंगे। फर्स्ट टाइम आप किसी से मिल रहे हो, आप ऑटोमेटिकली नर्वसनेस हमारे फेस पे आ जाती है। बट वेन यू वियर स्माइल, सब चीजें काम डाउन हो जाती हैं। एंड वेन यू सिट प्रॉपरली, डोंट कीप योर बैग ऑन टेबल, कीप योर बैग डाउन साइड, चेयर के साइड में रखा या कैसे भी रखा, एंड डोंट पुट योर हैंड्स लाइक दिस। टेबल के ऊपर हैंड जैसे करके नहीं बैठना है, हमें प्रॉपरली अपने हैंड्स को नीचे रखना है, एल्बोज हमारी प्रॉपर आएंगी, हमारे सिर्फ इतने हैंड्स ऊपर आएंगे, बस दैट्स इट, दैट्स इट। अगर हम कहीं डाइनिंग के लिए भी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, हमें सिर्फ अपने इतने ही हैंड के पार्ट से वर्क करना है, दैट्स इट। हमारा बॉडी मूवमेंट जो रहेगा सिर्फ इतने हैंड के पार्ट से रहेगा। Anybody wants to ask anything? Let's move ahead. Use a polite language, greet your elders and peer with respect, then punctuality. Punctuality matters a lot. आप जब भी कहीं भी जाते हो, whenever you go anywhere, in your school, in your college, for your interviews, be 5 or 10 minutes prior. 10-20 minutes का आपको मार्जिन लेके चलना ही है। पीपल ऑलवेज लाइक पंचुअल पीपल, किसी को वेट करना पसंद नहीं है। अगर नव्या, अगर वैशाली टाइम से नहीं आएगी, आपने उसको कहीं बुलाया, तो आप क्या कहोगे? व्हाट विल बी योर एटीट्यूड, व्हाट विल बी योर बिहेवियर एट दैट टाइम? नव्या, अनम्यूट योर सेल्फ। Ma'am, I would be very frustrated because my time is also going. That's why. यस, यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड, और धूप हो रही है उस टाइम बहुत ज्यादा, तो कैसा लगेगा? मैम, तब तो और गुस्सा आएगा। गुस्सा आएगा ना, तो सामने वाले की कंडीशन भी ऐसे ही होगी ना। बट ऑब्वियस है, अगर मैं टाइम से नहीं पहुंचू और ट्विंकल मैम वेट कर रहे हो मेरा, ठीक है, मैं लेट हो जाऊं, तो ट्विंकल मैम आपका कैसा रिएक्शन होगा इस चीज को लेकर? Yeah, यू but विल कॉल मी obviously अगेन एंड अगेन? won't be liking that. But obviously, यस, एंड इफ आई कम 5 minutes prior,
आप पहुंची भी नहीं हो और मैं 5 मिनट पहले आपके आके खड़ी हो गई हूँ, तो आप मुझसे मिलकर के खुश फील करोगे ना, हैप्पी फील करोगे ना? योर Yes, फेस definitely. एक्सप्रेशन विल टेल मी ऑल दिस स्टफ, राइट? Yes, yes. सी वैष्णवी, अगर आप 5 मिनट पहले पहुंच जाओगे, ठीक है, और रुचि आपका वेट कर रही होगी, तो रुचि को खुशी होगी या रुचि गुस्से में बिल्कुल टेंस हो जाएगी? कैसा मैम लगेगा रुचि? खुशी होगी। खुश होगी खुशी ना? होगी। बिकॉज यू आर ऑन टाइम। सो यू नीड टू सी, आपको टाइम से ही जाना है, 5 मिनट्स पहले जाना है। चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो आपका कॉलेज हो, चाहे वो आप किसी से मिलने जा रहे हो, फॉर एनीथिंग यू हैव टू मैनेज योर टाइम। हमने सबसे पहले क्या किया था बात? अपने गोल सेटिंग के बारे में बात करी थी, राइट? अपने शॉर्ट, सबसे पहले हमने शॉर्ट एनालिसिस किया, उसके बाद हमने गोल सेटिंग की, और उसी में हमने अपना टाइम मैनेजमेंट की बात करी कि सब चीजें टाइम से करनी है। तो आ गई ना वही चीज, अगर खाना टाइम से नहीं खाओगे और किसी से मिलने जाना होगा, तो खाना भी छूटेगा और टाइम पे भी नहीं पहुंच पाओगे, राइट? यस मैम। ठीक है। और अगर ट्यूशन जाना होगा और खाना भी नहीं खा पाए, तो और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी, माइंड लेवल का, माइंड का स्ट्रेस कितना हाई हो जाएगा रुचि, बताओ? मैम बहुत ज्यादा, खाली पेट बहुत दिमाग की बत्ती नहीं जलती। राइट। नहीं पत्ती चलेगी और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, माइंड का स्ट्रेस बूम कर जाएगा। माइंड बोलेगा ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, मैं क्या, माइंड आपको गाइड ही नहीं कर पाएगा। और जब माइंड गाइड ही नहीं कर पाता, तब आप काम नहीं रह पाते हो, आपका और फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, मुझसे ये भी नहीं हो रहा, मुझसे ये भी नहीं हो रहा, मुझसे ये भी नहीं हो रहा। यू आर गोइंग टू अंडर रेट योर सेल्फ। और अगर आप सब कुछ टाइम पे करोगे, आप आ गए घर पे, आपने खाना खाया आराम से, अब आपको ट्यूशन के लिए रेडी होना है, आपको पता है आपको 4 o'clock जाना है ट्यूशन, आप 3:45 निकलो, 15 मिनट्स में आप पहुंच जाओगे, राइट? आपका माइंड लेवल क्या हो जाएगा? काम डाउन हो जाएगा कि हाँ मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया हूँ। अगर हाफ एन आवर का डिस्टेंस है ट्यूशन का, तो 3:30 निकलोगे, खाना भी खा लिया, आप टाइम से पहुंच भी गए, आपका माइंड लेवल स्ट्रेस, आपका वो सब कुछ कम हो जाएगा, माइंड लेवल हैप्पी, स्ट्रेस लेवल लेस। नाउ यू कैन फोकस ऑन योर स्टडीज। माइंड कहेगा अब मुझे फोकस करना है, मुझे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो हम शुरू कहाँ से हुए थे? और हमने ग्रूमिंग की भी बात कर ली, हमने अपने जनरल एटिकेट्स की भी बात कर ली, हमने अपना ग्रीटिंग पैटर्न भी देख लिया, लेकिन सब बात आती है, हमारी मेन टॉक जो है हमारा, वो टाइम मैनेजमेंट। यू हैव टू वर्क ऑन योर टाइम स्किल्स। जहां आपका टाइम मैनेज रहा, वहां आप ये सब चीजें इजीली कर पाओगे, एंड यू विल बी प्रेजेंटेबल। हमें अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना है, बट द बेसिक स्टेप शुड बी, यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल्स, टाइमिंग स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट करना। देन डाइनिंग एटिकेट्स, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक टेबल सेटिंग्स। कहीं भी जाते हो, हमें 3 प्लेट्स सेटिंग मिलती है टेबल पे। हमें सबसे पहले हमारी छुट्टियों में हमें क्या काम करना है? हमें फॉक, हमें प्लेट कैसे मैनेज करना है, हमें फॉक कैसे मैनेज करना है, हमें स्पून कैसे मैनेज करना है, हमें नाइफ कैसे मैनेज करना है, हमें वो चीज सीखनी है। ठीक है, आपको वर्क करना है, आपको टेबल पे किस तरीके से ईट करना है। कभी कभी क्या होता है, हमें सूप पीना होता है, बहुत गर्म है, हम ऐसे पीते हैं और वो जल जाता है, राइट? सूप पीने का सबसे अच्छा तरीका है, जस्ट स्टिर द सूप। स्टिर करो उसको, धीरे धीरे स्टिर करो, वो अपने आप ठंडा हो जाएगा। और उसके बाद साइड से लो, वट एवर थिंग यू ईट, स्टार्ट ईटिंग फ्रॉम साइड। कभी भी बीच में से नहीं खाना स्टार्ट करना है अपनी प्लेट्स में। नूडल्स खाने का तरीका फॉक के साथ है, आप फॉक और स्पून यूज करो उसको प्रॉपर। कभी कभी फॉक में नहीं आता है नूडल, तो क्या करना है, आपको अपने लेफ्ट हैंड में स्पून रखना है, स्पून के साथ आपको थोड़ा सा पोर्शन लेना है अपने नूडल्स का, और उसके बाद अपने फॉक में उसको रोल करना है, एंड देन यू आर रेडी टू ईट। बेसिक थिंग्स, how to work, how to handle your spoon, how to handle your knife. Always try to work on these things. ठीक है, थोड़ा सा हम इस पे वर्क करेंगे, सो यू विल बी प्रेजेंटेबल। आप किसी के सामने, फॉर एग्जाम्पल आप अपने टीचर के साथ आउटिंग पे जाते हो, ठीक है,
कभी कभी होता है, फॉर्मल आउटिंग्स भी होती है। नाउ यू विल बी गेटिंग द चांस, आपके 12th के बाद फॉर्मल आउटिंग्स भी होंगे आपके लिए, इंटरव्यूज भी आपके यूनिवर्सिटीज में भी अरेंज होंगे आपके लिए, कॉलेज के लिए आउटिंग भी अरेंज होगी। वहां पे आपको अपना प्रेजेंट करना है। फेस्ट के टाइम पे यू हैव टू गिव योर बेस्ट, राइट? अगर कोई ऐसे खाएगा, हैंड से गंदे तरीके से खा रहा है, सारा माउथ में जा रहा है उसके, गिर भी रहा है क्लोथ पे, इट विल लुक गुड? आप अपना No, प्लेट लेके ma'am. साइड हो जाओगे, No, ma'am. राइट? वृंदा, आप अपना प्लेट लेके साइड हो जाओगे या उसी के पास बैठ के खाना पसंद करोगे? साइड हो जाऊंगी। साइड हो जाओगे ना? नो, ही इज नॉट विद मी और शी इज नॉट विद मी, राइट? सो आपको अच्छे से अपना बिहेवियर एनहांस करना है। उसके लिए आपको टेबल एटिकेट्स आने चाहिए। कभी भी टेबल पे अपना फोन या बैग भी नहीं रखो। ट्राई टू कीप इट इन योर पॉकेट। अगर पॉकेट में फोन नहीं आता, कैरी अ स्लिंग बैग। बॉयज कैन, बॉयज के पास पॉकेट्स, अच्छा ट्राउजर में अच्छा स्पेस होता है पॉकेट्स में, दे आर 4 पॉकेट्स, तो आप आराम से मैनेज कर सकते हो अपने गैजेट्स को, अपने वॉलेट को, अपने गैजेट्स को। डोंट कीप योर वॉलेट हैवी, स्पेशली बॉयज। बहुत सारी चीजें हम लोग उसके अंदर स्टफ कर लेते हैं, तो वो हैवी हो जाता है, वो अच्छा लुक नहीं देता जब आप मूव करते हो। सेम विद द गर्ल्स। स्लिंग को हाई इफेक्टिव बनाओ अपने स्लिंग बैग को कैरी करने के लिए। यूज, कीप योर सनस्क्रीन, कीप योर लिप ग्लॉस, कीप अ टिश्यू इन दैट। हैंकरचीफ अगर नहीं आता, कीप अ टिश्यू। वेट टिश्यूज आते हैं, कीप इट इन योर बैग। आपका वेट लाइट रहेगा। कीप अ स्लीक वॉलेट, डोंट टेक बल्जी वॉलेट्स। जितना बल्जी बैग होता है वो लुक नहीं देता है आपकी पर्सनालिटी को, वो डाउनग्रेड है, अपग्रेड नहीं करता। Always, if you are carrying a handbag, carry your handbag in your left hand. You will walk properly. Then let's move ahead. Then avoid loud chewing. Use napkin properly. Okay. And then don't keeping elbows off the table. Avoiding talking with a full mouth. आपको अवॉइड करना, जब आपके माउथ में कुछ भी है, वट एवर यू आर ईटिंग, आपको अवॉइड करना है बात करना। उस टाइम पे आपको बिल्कुल नहीं बात करना। वट एवर द थिंग इन साइड योर माउथ, यू हैव टू जस्ट फिनिश इट एंड देन टॉक। इफ somebody is asking something, just take a 2 minute pause. Don't be in hurry कि मुझे अभी आंसर करना है। Just take a 2 minute pause and then you can work on your thing. Then let's work on the body language. Body language speaks a lot. अगर आपने कुछ नहीं भी बोला और आपका नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज जा रहा है, आप ऐसे बैठे हो, कोई भी समझ जाएगा, कुछ भी समझ जाएगा कि दैट यू आर नॉट ओके, यू आर नॉट रेडी टू टॉक, यू आर नॉट इन मूड। एंड इफ यू आर सिटिंग प्रॉपरली, if you're having smile on your face and you are doing your eye contact, people are ready to talk to you, they will come and talk. So you have to be like this, that everybody should come and talk to you. So you have to work on your eye contact. Eye contact पे हम कैसे work करेंगे? For maintaining appropriate eye contact shows your confidence. ठीक है, अब मिरर एक्टिविटी हम इसमें कर सकते हैं। When you are talking, always when you are अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी के सामने जाना है और मुझे कुछ अपनी बात प्रेजेंट करनी है, जस्ट टॉक इन मिरर। सबसे पहले मिरर में टॉक करके जाओ, वो चीज अपने माइंड की जो भी चीजें हैं गैदर करो, एंड देन just look into the eyes of the person. Your confidence level will be here. The person will see your confidence level. If your eye contact will be there na, the person will see your confidence level. He will not मतलब आपकी टॉक्स को वो ध्यान ही नहीं देगा बिल्कुल, आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे वो जाएगा बिल्कुल। यस, द पर्सन इज कॉन्फिडेंट, आई वांट टू हियर, आई वांट टू लिसन मोर। देन वर्क ऑन योर warm, wear a warm smile. Gen A genuine smile makes you appear approachable and friendly, inviting positive interaction with others. अगर आप अपने फेस पे एक अच्छा सा स्माइल वियर करके बैठोगे, ठीक है, तो कोई भी आपसे आगे आके बात करेगा। और अगर आप ऐसे बैठोगे,
My facial expression is looking good. Somebody will talk to me. Somebody will talk to me. I'm already frustrated. My frustration is showing on my face. Nobody will come and talk. You will also hesitate. आप भी सोचोगे कि मैं बात करूं या नहीं करूं. अगर मैंने बात करी और उस टाइम पे मैम और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई तो मुझे तो डांट पड़ जाएगी भाई. तो मुझे बात नहीं करनी है. If I'm smiling, my mood is okay. You can find out my mood is okay or not. I'm ready to talk. Yes, ma'am. You can come and talk to me. And if I'm not okay, if my mind is upset, for example, अभी कुछ गिर गया, कुछ टूट गया और मेरा माइंड बिल्कुल अपसेट हो गया. Now see my facial expressions. I'm ready to talk No, ma'am. because I am not in the state. मेरे फेस पे ही दिखाई दे जाएगा. और अगर मैं स्माइल करके अच्छे से फॉर्म करके बैठी हूँ, स्माइल कर रही हूँ, देन यू विल अप्रोच मी एंड यू विल टॉक टू मी. तो आपको अपने फेस पे स्माइल रखनी है इफ यू वांट कि आपसे कोई आकर के बात करे और अच्छे से बात करे. देन योर हैंडशेक मैटर्स अलॉट. क्या होता है, कभी कभी हम बॉयज में क्या होता है, जोर से हाथ स्क्वीज कर देते हैं. राइट? होता है बॉयज में, हर्ष? होता है अंकुर? Yes, ma'am, most of the time. होता है ना, जोर से मजाक कर रहे हैं हम तो बस. राइट? नहीं, फर्मली आपको बहुत आराम से हैंडशेक करना होता है. गर्ल्स विल डू हैंडशेक लाइक दिस. आपको अपना हैंड बस ऐसे रखना होता है, ऐसे नहीं. नो, ऐसे. जब भी आपके कोई सामने हैंडशेक करेगा, जस्ट पुट योर हैंड लाइक दिस. बॉयज, हैंडशेक के टाइम पे मोर केयरफुल, बी केयरफुल कि दूसरे का हाथ ज्यादा प्रेस नहीं होना चाहिए. अगर दूसरे का हाथ ज्यादा प्रेस होगा तो उसका फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब हो जाएगा आपका. अरे यार, इसको तो एटिकेट्स ही नहीं है. राइट अंकुर? आरुष? Yes, Guys, ma'am. at least say yes or no. Prachi ma'am is asking something. अच्छा बताओ, आरुष कैसे हैंडशेक करोगे? अगर कोई तुम्हारे से हैंडशेक करेगा, टाइटली हैंडशेक करोगे किसी बड़े से या फर्मली हैंडशेक करोगे? अपने फ्रेंड से कैसे हैंडशेक करोगे? Firmly. फर्मली. हर्ष को हैंडशेक टाइट, हर्ष के पीछे जाके टैप करोगे या अच्छे से ग्रीट करोगे उसको? मैम वो पर्सन पे डिपेंड करेगा. पर्सन पे डिपेंड करेगा. मतलब हर्ष के साथ, हर्ष अगर तुम्हारे फ्रेंड है, साथ तो होगा if he ही. is a friend, तो then it's fine, है ना? नहीं, इट्स फाइन. फ्रेंड्स में फॉर्मली इनफॉर्मली आप कुछ भी करो, इट्स ओके. बट व्हेन इट कम्स टू योर क्लास, यू आर इन द फॉर्मल एनवायरनमेंट, देन यू हैव टू टॉक प्रॉपर्ली. ठीक है? तब उस टाइम पे आपको अच्छे से अपना ग्रीट करना है. बाहर आप कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बाहर उसको पिटाई करो, उसके पीछे टैप करो, उसके ऊपर चढ़ जाओ, इट्स ओके. वो आपका अनफॉर्मल एनवायरनमेंट है. ठीक है? वो आपका इनफॉर्मल एनवायरनमेंट है, उसमें आप कुछ भी कर सकते हो. बट फॉर्मल एनवायरनमेंट पे यू शुड बी टेक केयर ऑफ योर एटिकेट्स. यू शुड टेक केयर ऑन योर वर्ड्स. आपका जो भी कुछ वर्ड है, आपको उसको भी ध्यान रखना है, बिकॉज इट कम्स टू योर पर्सनैलिटी. ये सब चीजें आपकी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट करती हैं. ठीक है? कि आप कैसे हैंडशेक करते हो, आप किस तरीके से बैठते हो, आपका आई कांटेक्ट है या नहीं, आपका लाउड वॉइस है या वार्म वॉइस है. आपको अपने वॉइस मॉड्यूलेशन पे भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जहां पे वॉइस लाउड होती है, नो बडी लाइक्स टू लिसन. कोई भी सुनना नहीं चाहता. जहां भी वॉइस स्लो भी होती है, वहां भी कोई सुनना नहीं चाहता. यू हैव टू कीप योर वॉइस इन अ मॉडरेट लेवल. आपको अपनी बात कहनी है, आराम से कहो, दूसरे को समझ में आएगा. बट अगर जोर से बोलोगे, दूसरे को समझ नहीं आएगा, उसका माइंड सिग्नल देगा ब्लॉक का. आई डोंट वांट टू टॉक टू यू सर, प्लीज. Okay, now let's move ahead. Confident push-up. Now, how you stand, how you walk, it matters a lot.
आपको किस तरीके से वॉक करना है, किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से कहीं भी खड़े होकर के भी वॉक बोलना बात करनी है, उसके लिए भी बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप फॉर्मल एनवायरनमेंट में हो तो यू कैन स्टैंड एंड यू कैन टॉक, योर हैंड पोस्चर शुड बी लाइक दिस। ठीक है, अगर आप इनफॉर्मल एनवायरनमेंट में हो, आप कोनी भी रख के बात कर सकते हो अपने फ्रेंड के पास, नो इश्यूज। बट if you are working in a formal environment, if you are going for your college stuff, first day अच्छे से बात करो, जब impression बन जाए then you can talk anything, right? Right, Ankur? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay, nice. So you all are getting my points. Any question till here? Anything you want to ask? I think they all are clear, Twinkle ma'am. They are getting all the Now points. kids say they are very smart nowadays, ma'am. Rachi Yeah, ji. they all are getting all the points कि हमें कैसे behave करना है formal environment में. Nice. So now let's work on your art of connection communication skills. First, verbal clarity. You should be clear with your thoughts. आपका जो भी कुछ आपको बोलना है, you should be clear in your mind, then you speak. Okay? सामने वाले को क्लियर कम्युनिकेशन जाएगा, आपका क्लियर, तभी आपको क्लियर आउटपुट मिलेगा। अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, अगर वो मुझे क्लियर नहीं होगा तो मैं आपको क्लियरली आंसर नहीं दे पाऊँ। ठीक है, so you have to be clear in your thoughts and then you have to combine it with your language and then you can present in front of anybody. Take time, don't be in rush. Okay, हम कभी कभी क्या होता है, कुछ भी आधी बात सुनी किसी की और रिप्लाई करना हमने स्टार्ट कर देते हैं। नो, just let them complete their talks, let them complete their communication, then give your mind to think about it, think and then talk. डोंट बी इन हरी, कोई कहीं नहीं भाग रहा, इतनी कोई इमरजेंसी नहीं आ रही है कि तुम्हारे साथ कम्युनिकेशन पूरा नहीं होगा तो दूसरे पर्सन पे स्विच हो जाएगा। वी ऑलवेज लिसन, बी पेशेंस, लिसन अदर पर्सन एंड देन से द थिंग्स। अगर आप नहीं सुनोगे किसी को भी तो कोई आपको भी नहीं सुनेगा, कोई आपको भी नहीं चांस देगा बोलने का। अगर आप ही बोले जाओगे, सब कुछ बोलते रहोगे बोलते रहोगे बोलते रहोगे बोलते रहोगे और दूसरे पर्सन को भी आप इंटरप्ट करते रहोगे, नो सॉरी, you will not get the chance like this. In group discussions also you have to ring the bell or you have to raise your hand, right Khushi? Yes, ma'am. Right Navya, you have to give the chance. अगर आप ही बोलते रहोगे और दूसरे को चांस ही नहीं दोगे तो दूसरा भी नहीं आपकी सुनेगा फिर। एक्टिव लिसनिंग, ऑलवेज लिसन टू अदर्स। पहले आपने उसको कम्युनिकेट किया, ठीक है, अपनी बात उसको समझा दी, अब आप उसकी भी सुनो कि वो क्या कहना चाह रहा है आपके सामने वाला पर्सन। अगर आप क्लियरली उसको रिस्पेक्टफुली सुनोगे देन यू विल गेट अ रिस्पेक्ट, तब वो भी आपको सुनेगा। हैंडलिंग डिसएग्रीमेंट्स, कभी कभी समटाइम्स वी हैव डिसएग्रीमेंट्स विद द थिंग्स। ऐसा नहीं होता, कुछ चीजों को मैं एग्री कर रही हूँ, माइट बी ट्विंकल मैम उस चीज को एग्री ना करे, उनको वो चीज ना अच्छी लगे, तो उस डिसएग्रीमेंट को आपको कैसे हैंडल करना है। यू हैव टू हैंडल इट इन अ पॉजिटिव मैनर। ऐसे नहीं, नहीं मुझे पसंद नहीं है, मम्मा ने घी की सब्जी बनाई, राइट, अब मम्मा ने तो घिया की सब्जी बना दी बिकॉज 4 लोग भी खाते हैं आपके घर में और आप नहीं खाते, आप उस डिसएग्रीमेंट को क्या कैसे अडॉप्ट करोगे, कैसे बोलोगे मम्मा को। एनीबडी वुड लाइक टू आंसर? स्वाति, दिव्या, तान्या वुड लाइक टू आंसर? Let someone new answer this time. Shreyansh, you want to answer? Anokhi?
Ayush, Ma'am, Shikha. a disagreement with our mother. Yes. कैसे कहोगे मम्मा ने घी की सब्जी बनाई है एंड यू डोंट लाइक इट? Ma'am, Yeah, to be Ruchi. honest, okay, Ruchi can answer first. Khushi, you will complete, खुशी, then you Ruchi will answer. Yeah. Okay. So realistically, I will be eating it either ways because otherwise I won't be getting food. But Yes. I would try to explain my mother that I would not try to explain. Actually, I'll just eat it. आप कन्विंस करोगे मम्मा को कि मम्मा प्लीज गिव मी समथिंग एल्स, आई विल ईट दिस, थोड़ा सा Yes, क्वांटिटी yes, में मैं इसको खा लूंगी, बट क्या मुझे कुछ और सब्जी मिलेगा? यू विल कन्विंस योर मदर, राइट? yes, ma'am. That I will eat this, but can you make this afterwards or maybe Yes. sometime later? So this is the positive disagreement. आपको इसी तरीके से अपनी बात, अगर आपको नहीं कुछ, फॉर एग्जाम्पल मैम ने असाइनमेंट दिया एंड यू आर नॉट क्लियर विद द असाइनमेंट्स, यू आर बहुत नॉट सारे क्लियर विद द वीडियो नहीं क्वेश्चन, चलाया था। तो आप मैम को क्या बोलोगे? मैम प्लीज हेल्प मी आउट, वन वे, और मैम मुझे नहीं आ रहा समझ में, प्लीज क्लियर मी और प्लीज एक्सप्लेन मी, which way you are going to opt? Ayush, which way you are going to opt? Ma'am, can you repeat once again? Yeah. For example, your teacher has given you some assignment to complete, right? And you are not clear with the question. So, will you ask this thing, ma'am, please help me out? I'm not able to do it, or I'm not able to understand this question. Can you help me? और आप ऐसे मैम को बोलोगे, मैम प्लीज आई एम नॉट गेटिंग द क्वेश्चन, प्लीज हेल्प मी आउट. Which way? In which way you are going to say it? Ma'am, in the In ma'am, in the first first way. first way, you are going to ask, you are going to seek. Okay. For example, if your friend is saying something, ठीक है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एनवायरनमेंट में आप उसको कैसे भी बोल सकते हो, अरे नहीं 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 मुझे समझ नहीं आया, अरे नहीं नहीं नहीं, हम ऐसे ही बोलते हैं, राइट? बट in formal environment, how you have to handle your disagreement, that you are not agree with the things, can you consider my point also? Can you give one chance to me also to explain this thing? पॉजिटिव वे में आपको जाकर के बोलना है, आपको नेगेटिवली अपने आप को नहीं रिप्रेजेंट करना कहीं पे भी, आपको जो भी अपना रिप्रेजेंटेशन रखना है हमेशा पॉजिटिव वे में रखना है. दिस विल गिव यू 100 मार्क्स इन योर एटीट्यूड, इन योर बिहेवियर अप्रोच. अगर आप अपनी चीजें पॉजिटिव वे में करवा के कराओगे तो टीचर्स भी आपको एक्सेप्ट करेंगे. अगर आप नेगेटिव वे में जाओगे, कोई भी आपका डिसएग्रीमेंट को तो छोड़ो, आपको ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे. अरे ये तो नहीं समझता बात, अरे ये तो लड़ता है, आप उससे 2 स्टेप और पीछे हो जाते हो, राइट? और अगर आप अपने डिसएग्रीमेंट को पॉजिटिवली हैंडल करते हो तो आपके साथ सब खड़े होना चाहते हैं, सब आपसे बात करना चाहते हैं, सब आपको अपने साथ रखना चाहते हैं. सो हैंडल योर डिसएग्रीमेंट. It's okay, you are not agree with the point, but say it in a positive manner. Choose positive words, easy and positive words. Now let's come on the last. Charting your goals, goal setting and timeline. Define your goals, be smart to complete your goals and manage your time. If you are able to manage your time, if you are able to do the things on time, you can easily achieve your long-term goals also as well as your short-term goals also. Twinkle ma'am, that's all from my Yeah, side. Prachi. Yeah, thank you, Prachi, for the such a beautiful and nice tips and practical examples. I hope all kids like it. Jia, Navya, Khushi, any questions now from Prachi, ma'am?
No, ma'am. Ma'am, I had one question. Yeah, I Jia, mean, like, please. ma'am, when we are in a group discussion kind of setting, it is difficult to talk about the criticism. Like, some people do not take it very well. So, how can we deal with Yes, it? yes. In group discussion, at group discussion, you can handle your disagreement in a positive way. Like if you are not agreeing with something, it's okay, but display it in a positive manner. For example, if I'm not agree, like um, take any topic. Give me any topic, Navya. Let's talk about this thing. Ma'am, so let's talk about, for example, gender equality or the gender pay gap. Yeah, gender equality. Let's talk about gender equality. For example, you are in favor and I am in against. Okay, so let's talk about it. If I want to display my disagreement about this topic, how I'm going to display it in a positive manner? I will choose appropriate words. I will see that my words will not hurt anybody. I have to work on myself in this case. मुझे अपना डिसएग्रीमेंट दिखाना है, बट मुझे अपना पॉजिटिव डिसएग्रीमेंट दिखाना है, मुझे नेगेटिवली अपने लिए इमेज नहीं बनानी इसमें। मैं जेंडर इक्वालिटी में बिलीव नहीं करती, इट्स ओके, एवरीबडी इज डूइंग देयर ओन वर्क, बट मैं इसको कैसे डिस्प्ले करूंगी? स्माइल के साथ, कह करके अपनी बात को By स्माइल के putting साथ your कहूंगी। views positively in a positive way. यस मैम, वी आई नीड टू चूज माय वर्ड्स। मुझे अपने वर्ड सिलेक्शन पे वर्क करना है। मुझे The कोई word भी selection नेगेटिव वर्ड also नहीं बोलना है इसमें। and अगर the मैंने, way. या मुझे अपने वर्ड्स पे सिलेक्शन रखना है। मैं ये देखूंगी कि कौन सा वर्ड मेरे लिए नेगेटिव आ रहा है, तो मैं उसको कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करूंगी। मैं कोई भी चीज डिसएग्रीमेंट में बोलूंगी, आई विल से माई टॉप, आई विल से माई थिंग्स, कि नहीं मैं इसको डिसएग्री करती हूँ पॉइंट को, बट इन अ पॉजिटिव मैनर। आई विल सेलेक्ट, आई विल डू माई होमवर्क फर्स्ट। मैं अपना होमवर्क करूंगी, आई विल सेलेक्ट फ्यू वर्ड्स जिनको मैं इसके अंदर ऑप्ट कर सकती हूँ। ओके नव्या? Yeah, Nave, it's clear. Yes, ma'am. Thank you. समटाइम वी आर नॉट क्लियर विद द थिंग्स। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम उस डिसएग्रीमेंट को अपने फेस पे दिखा देते हैं, बट मैं अपने फेस पे भी नहीं शो करूंगी नव्या। आई हैव टू हैंडल माई फेस गेस्चर्स ऑल्सो। आई विल वियर स्माइल एंड आई विल गिव द आंसर। ओके नव्या? Yes, ma'am. Thank you. Yeah. Yeah, Prachi, I think everybody is done. No No, questions ma'am, now. I have one question. Excuse me, Yeah, So ma'am. Kushi, please. Yeah, Ma'am, Kushi. you mentioned some about how to act in public as well, and then there are proper etiquettes that you have to follow. yes, Ma'am, in some cases, like we do something by accident and it is a very embarrassing thing in front of public, especially like fumbling or, just tripping or any kind of thing. And I want to understand how to deal with such situations. And then another thing, if somebody is trying to embarrass us, like by on purpose, how to handle those kinds of situations. for these, Khushi, you need to be confident enough. You need to develop your confidence. If somebody is there who just want to figure out you, or who is just who is again and again pinpointing you, okay, poking you again and again, in that case, you have to be confident enough to give the answers. उसको आंसर किस तरीके से देना है? आपको पॉजिटिव वे में ही देना है आंसर, सो दैट ही विल नॉट टॉक टू यू अगेन रिगार्डिंग ऑल दिस स्टफ। हो जाता है एम्बेरसमेंट कभी कभी किसी चीज को लेकर के। बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, आपस में भी एक दूसरे को कमेंट हो जाते हैं। कुछ अच्छे कमेंट्स भी होते हैं, कुछ बैड कमेंट्स भी होते हैं, बट वी नीड टू नो हाउ वी कैन टेक इट। सेट बाउंड्रीज, यू हैव टू सेट For बाउंड्रीज। girls, it's for really girls, it's very special to नो, set इट्स फॉर boundaries. बॉयज ऑल्सो मैम, Yeah, इट्स but फॉर बॉयज sometimes, ऑल्सो। matlab, sometimes the comments goes beyond the thing, na, Yes, that's why. for that ma'am we have to set our boundaries. Yes, yes, And we if have to. somebody is crossing There the should be a boundary, limit of, we mother, need, you should decide your limits. Ki beyond yes, this, you won't listen to anyone. Bas. you will not take the things Yes, beyond this, you exactly. will not take the things. Yes. And you will give answer in a positive manner, so the other person will get the clue that
He he should or get your she, point, what you want to say exactly. yeah, he or she is not comfortable. So Yeah. I have to stop my things. You have to give the verbal clues. Khushi, work on your verbal clues. Okay, ma'am. Disagreements के भी कुछ verbal clues होते हैं. Your eye gestures, okay, your hand gestures. ये verbal clues होते हैं. इस पे हमें work करना है. Okay, ma'am. Thank you. Anything Any else? questions? I think Twinkle ma'am, they are looking forward for capsule guidance, Yeah. capsule wardrobe, as well as the capsule accessories. I will share the things and you can share with these children Yeah, definitely I will. I will. so they can easily go with Yeah. the capsule Thank you, wardrobe. everyone. Thanks, Prachi, for your time and efforts. Thanks a lot. Welcome, ma'am. Yeah. Bye bye. Bye. See you.